Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce OCM we'll be continuing with our chapter number 6, that is directing. So in this chapter we are at the last stage of this chapter. Only two topics are remaining for us to discuss, that is formal informal communications and barriers to effective communication and ways to overcome it. Okay, so we have already covered 80% of the chapters till now in the previous parts of the video, starting with the concept and meaning of directing, characteristics, importance, then elements of directing. There were four elements: supervision, leadership, motivation, communication. We have discussed about supervision and function of supervision, motivation and characteristics, leadership and characteristics. Then we discussed about financial incentives, non-financial incentives. In the previous parts of the video we have discussed about communication, characteristics of communication, methods of communication. So today we'll discuss formal and informal communication, that is types of communication, formal and informal communication. Okay, so let us start with formal and informal. As per form, there are two types of communication. First one is formal, other one is informal. Communication के दो टाइप है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन. Formal communication, any communication that depends on the structure of organization and its rules and regulation and is implemented for the accomplishment of business objectives is formal communication. कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो बिजनेस के स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स या कोई भी गोल को अकम्प्लिशमेंट के लिए, किसी गोल को फुलफिल करने के लिए होता हो, सो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन. दो चीज़ें, या तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी ऑब्जेक्टिव्स को या किसी गोल को अचीव करने के लिए हो, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर्मली लिंक्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है. इट्स ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सच कम्युनिकेशन इज जनरली इन राइटिंग. मेजरली ये कम्युनिकेशन इन रिटर्न होता है, राइटिंग में होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. Here who will send information to whom is decided beforehand. The form of information is also decided. It can be clear from the example given below. फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर रिटर्न होता है और क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसमें कम्युनिकेशन करने से पहले हमें पता होता है कि कौन किसको कम्युनिकेट करने वाला है या कौन किसको इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, नोटिस और मेमो is given as warning to the employees who are irregular and remaining absent with prior permission. वोटिंग और नोटिस और मेमो क्या है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो इनडिसिप्लिन है या इरेगुलर है उनके काम में. लेटर गिवन बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फॉर हिज ट्रांसफर और प्रमोशन. ट्रांसफर प्रमोशन के लिए लेटर जो दिया जाता है सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट को, वो भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है. ओके, तो हमें पता चल जाता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के टाइप से पता चल जाता है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. Characteristics of formal communication. In this communication system, superior and subordinates are formally related. हमने आगे ऊपर डिस्कस किया. Objective is of control and coordination. This also we discussed. Generally in written form. तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही सब चीज़ें रिपीट हो रही है. This type of communication system is accepted as policy of organization based on organization structure, that also discussed. Formal organizations formed for the accomplishment of business objectives, easy and clear to understand. तो आउट ऑफ दिस 7 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 4 एक थोड़ा सा नया पॉइंट है. बाकी रिमेनिंग 6 पॉइंट भी डिस्कस इन द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली. कि भाई सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच फॉर्मली रिलेशन होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, रिटर्न फॉर्म में है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ईजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड होता है. क्लियर? So these are the characteristics of formal communication. Now talking about informal communication. Communication system which depends on human relations and friendship among employees of an organization is known as informal communication. ऐसा communication system
जो ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन फ्रेंडशिप्स के ऊपर, एम्प्लॉयज के अंदर अंदर के फ्रेंडशिप्स और सोशल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, सच कम्युनिकेशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड सिंपल. देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोल एंड ऑर्डर. इट कैन बी एक्सप्लेन ओरली और इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज. ज़्यादातर हम ऑब्वियसली बात, अगर हम किसी फ्रेंड से बात करेंगे या किसी कलीग से बात करेंगे जो हमारे साथ में काम करता है लेकिन हमारा फ्रेंड भी है, तो क्या हम उससे सारी बातें रिटर्न में करेंगे? नो, इधर ओरली और इधर इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज. Informal organization provides coordination and credibility to organization. इंडस्ट्रियल जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है. कैसे? एग्जांपल देखते हैं. इंडस्ट्रियल मैनेजर इंस्ट्रक्ट द लेबरर टू वर्क. सेल्स मैनेजर गिव्स इंफॉर्मेशन एंड सजेशन रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन टू द सेल्समैन इन इजी गोइंग मैनर एंड इनफॉर्मल मैनर. ओके, एग्जांपल इज नॉट यूजफुल फॉर नाउ. इसको इस तरीके से समझो. फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर. ओके, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माय स्कूल, कलीग्स. कुछ कलीग्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं. ओके, सो अगर मैं एब्सेंट हूँ या मैं ड्यूटी पर अवेलेबल नहीं हूँ या मैं किसी काम से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेशन लेने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं जिनसे मैं इनफॉर्मली कम्युनिकेट करता हूँ, तो वो क्या करेंगे? अगर वो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे तो वो उस टाइम पे मेरी क्लास, मेरा सेशंस मैनेज कर लेंगे, जिससे करके किसी को प्रॉब्लम ना हो. और ऐसा कौन करेगा? वो ही करेंगे जो मेरे क्लोज होंगे, जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, जो मेरे इनफॉर्मल ग्रुप में होंगे. ओके, सो इस तरीके से जो क्रेडिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की या कोऑर्डिनेशन है, वो मेंटेन रहता है ड्यू टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, सेम थिंग इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है जो हमने डिस्कस करी. बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, कंट्रोल और ऑर्डर नॉट रिक्वायर्ड, orally or through symbolic language, depends on human and friendly relation, flexible and easy. पॉइंट नंबर 6 लिखना है, प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, 7 भी डिस्कस मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन. एग्जांपल जो डिस्कस किया हमने वही. एंड दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट सप्लीमेंट्री बट कॉम्प्लीमेंट्री टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डज दिस मीन? ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज सप्लीमेंट्री, इज नॉट सप्लीमेंट्री बट कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो पहले तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं. सप्लीमेंट्री मीन्स कि किसी की जगह लेने वाला, और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स किसी को सपोर्ट करने वाला. तो यही कह रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सप्लीमेंट्री नहीं है. मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन की जगह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे तो आपका काम हो जाएगा सारा, ऐसा नहीं है. लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है. क्लियर? नाउ another theme mark important question from this chapter: difference between formal and informal communication. Meaning, communication system which depends on rules and regulations and accomplishment of business objectives is known as formal communication. Communication system which depends on human relation and friendship is known as informal communication. The purpose of formal communication is control and coordination. The purpose of information is to give more coordination and credibility to organization. Base, due to rules and regulations, exchange of information between two peoples takes place. So rules and regulations are base. Over here, due to personal and friendly relations, exchange of information between two people take place. So here personal and friendly relations is base. Formal communication requires control and supervision. It does not require. Informal does not require control and supervision. Formal is less flexible. Informal is more flexible. Formal communication takes place at work during working hours. It takes place at any place or during working hours.
फॉर्मल कम्युनिकेशन सिर्फ वर्क प्लेस पे, वर्किंग आवर्स पे होता है, जबकि इनफॉर्मल कहीं पे भी कभी भी हो सकता है. Information in advance. Here, sender and receiver of information as well as form. Here, sender and receiver of information as well as form of communication are decided beforehand. मतलब सेंडर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाएगी, सब डिसाइडेड होता है. कम्युनिकेट करने से पहले डिसाइडेड होता है. लेकिन यहाँ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसीजर आर नॉट डिसाइडेड बिफोर हैंड, इट टेक्स प्लेस एज पर टाइम एंड सिचुएशन. यहाँ इनफॉर्मल में कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन किसको क्या कम्युनिकेशन करेगा, कैसे करेगा, कौन से वे से करेगा. ये सब एट द मोमेंट ऑफ टाइम पे होता है. क्लियर? सो टुडे स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, only one more video is remaining from this chapter discussing about barriers of effective communication and measures to overcome the barriers of effective communication. I hope you guys have understood today's session. If you are having any doubt, please please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.